Dear students, today our topic is function. Function is a most important topic in C programming language. Function is a subprogram. A function is a block of a statement. This performs a specific task. When we are writing a C program and we need to perform the same task in a program more than once, in this case we have two options. Number one, use the same set of statement every time we want to perform this task. Number two, create a function to perform this task and just call it every time we need to perform this task. Good programmer always use function while writing a code in C. There are two types of function in C programming language. Number one, standard library function. Number two, user defined function. Standard library function. The standard library function are built-in function in C programming language. These functions are defined in header file, that is printf is a standard library function to display output on the screen. These functions are defined in stdio.h header file. When we use printf function, we need to include the standard input output header file. Here hash include stdio.h. sqrt, abs, log, sign, po, etc. are needed to include math.h header file. Hash include math.h. Then the second one is user defined function. We can also create function as per we need. Such functions created by the user are known as user defined function. General form of user defined function. First of all, we have to declare the function after the inclusion of header file. For example, hash include stdio.h, hash include conio.h. Here write return type, function name, argument list, semicolon. It is divided into four parts. Return types means data type, and function name is function name, and argument list then semicolon. Definition of function. Definition of function is here return type, function name, argument list, parameter list. Variable declaration, statement 1, statement 2, return, computed, semicolon. Then third one is function call. Void main, variable declaration, statement 1, statement 2, z is equal to function name, argument list, semicolon, curly bracket 1. Here general form of user defined function is divided into three parts. First we declare a function after the inclusion of header file. Then definition, you can write definition above or below the void main. Return type, definition of function is written here, type, function name, argument list, parameter list, variable declaration within a function. These variables are working in the function, not in main program. Statement 1, statement 2, return value computed. Function call, void main, variable declaration, statement 1, statement 2,
z is equal to function name argument list. फंक्शन क्या है समझिए। फंक्शन एक छोटा प्रोग्राम है। जिस तरह हम लोग कभी भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उस वक्त अगर हम लोग छोटा प्रोग्राम बना रहे हैं तो छोटा प्रोग्राम को लिख के आसानी से हम लोग कंपाइल करा लेते हैं और उसको रन करा के देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो उस समय उस स्थिति में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं तो उस स्थिति में कुछ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स का बार बार रिपीटिशन होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये करें कि वो स्टेटमेंट को बार बार लिखें, या दूसरे स्थिति में या दूसरे सिचुएशन में हम उस स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बार बार ना लिख करके हम लोग उस स्टेटमेंट या उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का एक फंक्शन बना लें या एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें और उस फंक्शन की जब भी हमें जरूरत पड़े तो उसे कॉल करके अपने प्रोग्राम में यूज कर लें। जितने भी अच्छे प्रोग्रामर हैं वो जब भी सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखते हैं तो उस स्थिति में वो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब फंक्शन दो तरह का होता है। नंबर 1 स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन और नंबर 2 यूजर डिफाइंड फंक्शन। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन वो बिल्ट इन फंक्शन होता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से बने हुए फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन में करते हैं। ये फंक्शन सब पहले से ही हेडर फाइल में डिफाइन होता है, जैसे कि printf फंक्शन। ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसका काम आउटपुट देना रहता है स्क्रीन पर। तो ये फंक्शन जो है ये भी पहले से डिफाइंड है stdio.h हेडर फाइल में। जब भी हम लोग printf का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस वक्त हम लोगों को stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग पहले प्रोग्राम में भी सीख चुके हैं #include stdio.h हेडर फाइल। और बहुत सारे मैथ के फंक्शन जैसे स्क्वायर रूट, एब्सोल्यूट, लॉग, साइन, ओ, ऐसे फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग math.h हेडर फाइल की जरूरत पड़ती है। जब भी हम लोग ये फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त हम लोगों को include math.h लिखना पड़ेगा। अब समझिए दूसरे फंक्शन को जो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये भी फंक्शन है लेकिन ये पहले से बना हुआ नहीं है, इसको आप खुद बनाएंगे। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को आप बना सकते हैं और उसको क्रिएट कर सकते हैं। जब भी कोई फंक्शन को जब आप बनाएंगे तो उसको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। अब आप लोग समझिए कि फंक्शन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन लिखना हो तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले डिक्लेरेशन करते हैं। डिक्लेरेशन में क्या लिखेंगे? रिटर्न टाइप। ये रिटर्न टाइप जो होगा वो बेसिकली डेटा टाइप के तरह होगा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। और अगर रिटर्न टाइप कुछ भी वापस नहीं जा रहा है तो हम लोग इसके जगह पर वॉइड लिखेंगे। और फंक्शन नेम आप अपने हिसाब से रखते हैं, जैसे वेरिएबल का नेम रखते थे जिससे ये पता चलता था कि वेरिएबल किस तरह का है, उसी तरह फंक्शन का नाम भी हम लोग रखते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट जो इसके अंदर पैरामीटर हम लोग पास करेंगे
उसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद सेमीकोलन लिखेंगे। ये जब भी डिक्लेयर करेंगे हम लोग फंक्शन को, उसमें 4 चीज को लिखना होगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट और सेमीकोलन। ये सबसे पहले लिखेंगे कब, जब हम लोग हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं, उसके बाद यहीं पे हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग रिटर्न टाइप की जगह पर लिखते हैं इंट और फंक्शन का नाम ऐड लिख दें और इंट ए और इंट बी लिख दें, उसके बाद सेमीकोलन लिख दें। ठीक है, तो ये जब भी डिक्लेयर करेंगे हम लोग, ये इंक्लूड करते वक्त उसके ठीक नीचे में इसको लिखना है, जिससे इसका डिक्लेरेशन का पता चलेगा। जब तक कि हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसको डिफाइन करने से हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो अब देखिए डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। जब भी अब फंक्शन बनाएंगे, जब हम लोग फंक्शन बनाएंगे तो उस वक्त क्या करेंगे, जब फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन भी इसी तरह बनेगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, आर्गुमेंट लिस्ट और पैरामीटर लिस्ट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। और वेरिएबल का डिक्लेरेशन जो करेंगे वो फंक्शन के अंदर होगा, विद इन ए फंक्शन होगा। उसके बाद स्टेटमेंट 1 लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट 2, फिर बहुत सारे स्टेटमेंट लिखने के बाद, और जब रिटर्न करेंगे यहां से वैल्यू को, तो फंक्शन शुड रिटर्न ओनली वन वैल्यू, फंक्शन एक ही वैल्यू को रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग जैसे मान लीजिए अब इसी को हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इंट ऐड इंट ए इंट, यहाँ हम लोग सेमीकोलन नहीं लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट शुरू कर देंगे, और मान लीजिए सम इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लिख दिए इंट सम इज इक्वल टू 0। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो उस वक्त और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करना है यहाँ कर लेंगे, और यहाँ से जब रिटर्न करेंगे, रिटर्न लिखेंगे सम, और सम लिखने के बाद इसको वापस करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये डेटा टाइप यहाँ सम कैलकुलेशन के बाद आ रहा है, उसके बाद यहाँ से जब वापस जाएगा तो उसका डेटा टाइप यानी सम का डेटा टाइप, और जो मेन प्रोग्राम में जहां पे भी डेटा स्टोर करेंगे उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ फंक्शन कॉल करते वक्त हम लोग लिखेंगे, मान के चलिए यहाँ पे लिखते हैं void main, ठीक है, और मान लीजिए z यहाँ लिखा तो इंटीजर z, ठीक है। उसके बाद ये भी जो भी डेटा यहाँ से भेजेंगे हम लोग उसको लिखेंगे, मान उसका z बराबर फंक्शन नेम हो गया ऐड 10,20 लिख दिए और सेमीकोलन लिख दिए। तो ये जो डेटा टाइप होगा वो यहाँ से मान लीजिए सम इज इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ से ऐड करेंगे। उसका कॉल करने के बाद हम लोग यहाँ से वापस हो जाएंगे और उसका यहीं पर प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट z। यहाँ पे देखिए इंटीजर z लिख लिए, उसका ऐड लिखे z लिखे ऐड 10,20 कर दिए, वैल्यू यहाँ से इनपुट कर दिए, और प्रिंट लिखे सम बराबर %d, z, z से वैल्यू प्रिंट कर ली। अब देखिए यही बात यहाँ ध्यान रखना है, जो रिटर्न डेटा टाइप यहाँ भी इंटीजर लिख रहे हैं और यहाँ भी इंटीजर लिखे हैं, और जहाँ पे ये डेटा स्टोर करें यानी सम जहाँ पर भी स्टोर होगा जाके उसका डेटा टाइप और जो यहाँ का रिटर्न डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसका भी डेटा टाइप सेम होना चाहिए। जब तक ये तीनों सेम नहीं होगा तब तक ये हमारा काम नहीं करेगा। आप एक बात और समझ लीजिए कि यहाँ पर इंट ऐड, इंट ए की जगह पर सिर्फ इंट भी लिख सकते हैं, इंट बी की जगह पर सिर्फ इंट लिख सकते हैं, इंट कॉमा इंट भी लिख सकते हैं, है ना। इंट कॉमा इंट भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप लिखिए इसको इंट ए इंट बी, है ना, और उसे करने के बाद इसको प्रोग्राम बनाइए। तो सबसे पहले इसमें समझ में आने वाली बात क्या है, ये तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे भी बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे, उस वक्त और क्लियर होगा आपको। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिक्लेयर करेंगे किसी भी फंक्शन को, वो कहाँ पे, इंक्लूड के ठीक नीचे, इंक्लूड के ठीक नीचे उसको डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को,
और डिक्लेरेशन में 4 पार्ट होगा, एक रिटर्न टाइप जो यहाँ लिखा है हमने इंट, एक ऐड, और यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट इंट ए इंट बी, उसके बाद सेमीकोलन, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। अब जब भी डिफिनेशन करेंगे हम लोग तो इसका 3 ही पार्ट होगा, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे डिफिनेशन में, जैसे सेमीकोलन लगा दीजिएगा तो वो एज ए डिक्लेयर हो जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग डिफिनेशन कर रहे हैं तो उस पीरियड में हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद डिक्लेयर करेंगे, और जैसे जैसे हम लोगों को काम करना है वो करते रहेंगे। इन सम इज इक्वल टू 0 मान लिए, सम बराबर ए प्लस बी मान लिए, रिटर्न सम किए तो रिटर्न सम किए, और उसके बाद वॉइड मेन में हम लोग इस तरह इसको कॉल कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट भी इसको कॉल कर सकते हैं, है ना, लेकिन प्रिंट जब वही करना होगा। ठीक है, अब आगे चल के हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे इसमें, तो हम लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।